हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू। और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे आई विल ट्राई एंड कंप्लीट शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। सबसे पहले हम ये नेल्सन मंडेला का एक माइंड मैप है, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट पे भी रख सकते हैं और या आप ब्लॉग में जाके मेरे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस नेल्सन मंडेला के माइंड मैप से आपको पूरा चैप्टर एक मिनट में समझ में आ जाएगा. इट विल बी easy for you to understand. Nelson Mandela was imprisoned in jail for 30 years. Nelson Mandela won Nobel Peace Prize. He fought against apartheid. He became first president of South Africa Democratic Non-Racial Government. He led African National Congress and he delivered inaugural speech in Pretoria, paid tribute to freedom fighters. He called people as the greatest asset. He taught to conquer fear. He taught to love everyone. He mentioned twin obligations. He had hunger for freedom of people. He stated both oppressor and oppressed are robbed of humanity. He condemned racial discrimination and he hoped for social free of poverty, sufferings and discrimination. He termed it as a victory for justice, peace and human dignity. तो ये पूरे चैप्टर में जो ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है नेल्सन मंडेला की, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आप इसको याद कर लेंगे, इट इज़ मोर और लेस आप पूरा चैप्टर एक तरीके से याद कर लेंगे. दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम्स एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस. लेट्स क्विकली बिगिन द क्वेश्चन आंसर नाउ. So the first question to start with is very easy one. Who led the first non-racial government? अभी हमने पढ़ा था माइंड मैप में, so you know it was Nelson Mandela. So Nelson Mandela led the first non-racial government. The next question is, what type of government was chosen in South Africa? तो अभी हमने पढ़ा था नॉन रेशियल, बट इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी दैट वाज डेमोक्रेटिक. सो आंसर इज a democratic government, or you can also write a democratic non-racial government was chosen in South Africa. What do the military generals do? If you want, we can refer the book also. It will be easy. So students, if you refer the book, आपको जनरल ने क्या किया था वहाँ पे आपको मिल जाएगा. So the generals of the army saluted Nelson Mandela. So इसका आंसर है the military generals saluted and pledged their loyalty in front of Mr. Mandela. Let's go to the next question. How was the government chosen? तो ये जो गवर्नमेंट बनी थी नई, ये कैसे चुनी गई थी? क्या वोटिंग हुई थी या ऐसे ही राजा जैसे करते हैं वैसे हो गई थी, क्या था? तो इसका आंसर है इट वॉज चोजन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस? तो ये जो नेल्सन मंडेला ने जब ओथ सेरेमनी की थी व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, वो कहाँ पे हुई थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना. वैसे तो यू कैन आंसर इन वन वर्ड ऑल्सो, इट हैपेंड इन प्रिटोरिया, बट you can also write the ceremonies took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. अब ये थोड़े से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस भी बीच में आ गए हैं. लेट्स डू दैट ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, what is the greatest wealth of a country? And what do you conclude about Nelson's character? So students, इसका आंसर बड़ा इजी है. As per Nelson Mandela, South Africa was rich in minerals and gems, but according to Mandela, people of the nation are its real wealth. तो मंडेला कहते थे आपके ज़मीन पे चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने भी हों, लेकिन जो लोग हैं दे आर दी एक्चुअल वेल्थ. सो इससे नेल्सन का करेक्टर ये भी होता है कि ही यूज टू रिस्पेक्ट पीपल. Next question, 10th May 1994 is important for South Africa. Comment on this. तो बड़ा easy है. We know this is important day because this is when Nelson Mandela took oaths. So it was on this day
that first democratic non-racial government elections were held and on this day in the country, and Nelson Mandela became the first black president of the country. And student, this is one more important question. ये कई बार एग्जाम्स में आता है, so थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा. What does Mandela say about the oppressor? ऑप्रेसर कौन होता है? जो किसी और पर अत्याचार करता है, किसी की फ्रीडम ले लेता है, तो उसको ऑप्रेसर कहते हैं. जो अपने दबता है उसको ऑप्रेस्ड कहते हैं. तो मंडेला इसमें क्या कहते हैं कि जो किसी को दबाता है या किसी पर अत्याचार करता है या किसी की फ्रीडम लेता है, उसके बारे में मंडेला ने क्या कहा है इस चैप्टर में. तो इसमें मंडेला न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द ऑप्रेस्ड. वो कहते हैं मंडेला, जैसे कि अगर आपकी फ्रीडम चली जाती है, जिसकी जो ऑप्रेस्ड होता है, जैसे उसको फ्रीडम देके उसको लिबरेट किया जाता है, वैसे ही जो फ्रीडम लेने वाला है उसको भी लिबरेशन की ज़रूरत होती है. वो कैसे? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. यानी कि जो किसी की फ्रीडम ले रहा है वो किसका प्रिजनर है? वो घृणा, हेट्रेड, जलन, इससे प्रिजनर है. सो उसको उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. अ पर्सन इज नॉट truly free if he is taking away someone else's freedom, just as surely as one is not free when freedom is taken from. तो मंडेला कहते हैं जिसकी फ्रीडम जाती है वो भी परेशान है और जो फ्रीडम लेता है वो भी परेशान है. दोनों को फ्री करना चाहिए. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक एंड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. तो ह्यूमैनिटी से क्यों रॉब्ड है? क्योंकि ह्यूमन नेचर प्यार करना होता है, किसी को हेट करना ह्यूमन नेचर नहीं होता है. इसलिए इसमें मंडेला ने ये ऐसे कमेंट किया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड स्टूडेंट्स, अब बीच में हम थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं. सो आई एम डूइंग इट मिक्स एंड मैच, जिससे कि आप इंटरेस्टेड भी रहें और आपको समझ भी आता रहे. हु केम टू विटनेस द सेरेमनी? तो जो प्रेसिडेंट मंडेला, व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उस सेरेमनी को विटनेस करने कौन कौन आया था? डिग्नेटरीज ऑफ अमेरिका, डिग्नेटरीज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, पीपल वियरिंग डिफरेंट कलर्स और पॉलिटिशियंस. तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी आंसर है. इट वॉज डिग्नेटरीज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. So the answer is correct. It is the dignitaries of people from different nations. Let's go to the next question. What is South Africa rich in? Minerals and gems, wheat, rice or water? तो ये हमने पढ़ा था, बुक में भी पढ़ा था, चैप्टर जब हमने पढ़ा था. South Africa is rich in minerals and gems. This is also correct. Let's go to the next question. Where was the ceremony held? Union buildings in Pretoria, Union buildings in America, Union buildings in India और Union buildings in France? Again, मैंने आपको बताया, बड़ा important question भी है. It was in Union buildings in Pretoria. Correct. That's the right question and answer. What type of government was chosen in South Africa? ये हमने short question में भी किया है. Was it a racial government? No. Was it a democratic government? Yes. Was it a non-racial democratic government? Yes. Racial democratic government? No. तो पहला और आखिरी तो बिल्कुल ही गलत है. दूसरा ठीक है, बट परफेक्ट आंसर है. The type of government chosen in South Africa was non-racial democratic government. Correct. Let's go to the next question. Nelson Mandela was accompanied by his daughter, वाइफ, सन और फादर. तो हमने पढ़ा था चैप्टर जब हमने पढ़ा था, नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम कर रहे हैं, थोड़े से एमसीक्यू कर लिए हैं. नाउ लेट्स डू सम अगेन शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन? तो स्टूडेंट्स, पहले का तो आंसर हमें पता है. The ceremonies took place in the Union buildings of Pretoria.
and it was made of sandstone. Can you name any public buildings in India that is made of sandstone? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन. हम आंसर इसका पूरा बताते हैं आपको. The ceremonies took place in amphitheater, which was formed by Union Buildings in Pretoria. In India, we have many public buildings made of sandstone, some of which are Rashtrapati Bhavan, Red Fort, and the Supreme Court of India in New Delhi. Let's go to the next question. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? तो आपने पढ़ा होगा, एक बुक का क्वेश्चन भी है कि why is 10th May referred as autumn day in South Africa? तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा ही ट्विस्टेड आंसर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. साउथ अफ्रीका है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है. सो व्हेन मे फॉल्स it is in the autumn season. That is why we can say that May falls in the autumn season, because it lies in southern hemisphere. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? मतलब कि मंडेला जब extraordinary human disaster को रेफर कर रहा है, इसका मतलब किस चीज़ से था? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और उसने लास्ट में बोला it's a glorious human achievement. तो उसका क्या मतलब था? Let's get the answer. So students, by an extraordinary human disaster, Mandela is referring to the apartheid system that was prevalent in South Africa under the previous leadership. People of color were treated unfairly, and no human being deserves that. He stood against the unjust practices and finally won the democratic elections to become the first black president of South Africa. He refers to this win as the glorious human achievement. तो मंडेला का कहना था, जो भी अपार्थाइड सिस्टम इतने सालों से पिछली गवर्नमेंट या पिछले रूलर्स कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, दैट वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. और इन सब को पार करके, इनके अगेंस्ट लड़ाई करके जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, दैट इज रेफर टू एज ग्लोरियस ह्यूमन achievement. Next question students, what does Mandela thank the international leaders for? तो स्पीच में नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आते हैं उनको थैंक यू करता है कि थैंक यू फॉर कमिंग हियर. वो किस लिए थैंक यू करता है? इनका आंसर है, नेल्सन मंडेला or the author thanked the international leaders for joining and supporting them in their victory of freedom, justice and human dignity. Earlier, many nations had cut ties with South Africa because of their practice of apartheid, but जब apartheid खत्म हो गया तो सारे के सारे जो international leaders हैं वो आए and they supported. So, the Nelson Mandela thanked international leaders for that. Now, this is a long answer type question. Grit and determination can help one to realize one's goal even if one has to go through the needle of an eye. Substantiate this statement with reference to the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And students, इसका अगर आंसर आपको आता है लिखने के लिए तो यू कैन राइट, ऑल्दो अब शायद जो नया पैटर्न है उसमें इतने लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, फिर भी आई एम टेलिंग यू दिस आंसर. ग्रिट एंड determination can help one to realize one's goals, helps in the development of mental strength to face challenges in life. Mandela spent a lifetime fighting against apartheid. He had to spend 30 years in prison. He worked hard to liberate the people from exploitation and oppression by whites. He was ready to risk life for freedom. He had to stay away from family. Gaining freedom took precedence over family. He never allowed the flame of struggle to be doused, and his life a saga of struggle to attain freedom, and he attained freedom and reinstalled democracy. So this will substantiate the statement that grit and determination can help one to realize one's goal. तो जो मंडेला थे वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानी उन्होंने, और वो लड़ते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी जीत उनको मिली गई. अब स्टूडेंट्स फिर से कुछ एमसीक्यू टाइप कर लेते हैं.
Why did other countries break off diplomatic relations with South Africa? तो जो बाहर की जो कंट्रीज थी उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस साउथ अफ्रीका से क्यों तोड़ दिए थे? White rulers forced them to do so. Other countries were racial. It was a poor country, or because of the apartheid policy that existed in South Africa. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है the other countries broke off the diplomatic relations with South Africa because of the apartheid policy that existed in South Africa. The author or the Nelson Mandela was surrounded by world leaders because he was paid respect by them before he was sworn as the president. He was an honored guest and was welcomed by them. They were there to honor him as he had won a prestigious award, or they represented their countries and wanted to render their support. So students, इसका आंसर है so Mandela was surrounded by world leaders because he was paid respect by them before he was sworn as the president. तो प्रेसिडेंट बनने से पहले लोग उसको रिस्पेक्ट या ग्रीटिंग कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज दैट मेड इंटरनेशनल लीडर्स टू सेट foot on South African soil? A feeling of humanity, end of apartheid policy, trade negotiations or peace? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है the end of apartheid policy. That was the main change that made international leaders to set foot in South African soil. What did the narrator and the patriots sacrifice their lives for? तो जो नेल्सन मंडेला है और बाकी लोग ने किस लिए अपनी जानें दाव पे लगाई थी या सेक्रीफाइस करी थी? फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर फैमिलीज, फॉर देयर ओन पीपल, और टू लिबरेट देम फ्रॉम अपार्थाइड पॉलिसी, और ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें ध्यान रखना है जो नेल्सन मंडेला थे और बाकी लोग थे वो अपने फैमिलीज को भी फ्री करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए भी सेक्रीफाइस करना चाहते थे और अपार्थाइड पॉलिसी से भी छुटकारा पाना चाहते थे. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. Whom did Mandela want to thank but could not? तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में बोलते हैं कि मैं थैंक यू करना चाहता हूं कुछ लोगों को पर मैं कर नहीं पाता, मैं यहाँ पे कर नहीं सकता. तो क्या ऑप्शन है? हिज फैमिली, वाइट रूलर्स, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु वर नो लॉन्गर अलाइव, और मिलिट्री ऑफिसर्स. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मंडेला wanted to thank but could not the African patriots who were no longer alive. वो इसलिए थैंक नहीं कर सकता था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, सबने पैट्रियट्स ने जंग लड़ी, पूरा सपोर्ट किया अपार्थाइड पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दे वर नो लॉन्गर अलाइव, तो इसलिए नेल्सन मंडेला उन्हें थैंक नहीं कर पाया. What एनिमेटेड मंडेलाज लाइफ? एनिमेटेड मतलब कि मंडेला की जो पूरी लाइफ जैसी भी थी वो कैसे हुई, किस कारण से वैसी हुई? बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर टू सर्व हिज पीपल, बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम, और बिकॉज हिज डिज़ायर टू फ्री ओनली हिज फैमिली, और हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. तो बड़ा ईजी है, आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. अब हमने एमसीक्यू कर लिए कुछ, हम एक छोटा सा लॉन्ग शॉर्ट आंसर भी कर लेते हैं. व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उसका आंसर है लिबरेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation of suffering, gender and deprivation from suffering, gender and other discrimination, and extirpating oppression of one by another and reigning of freedom. ये नेल्सन मंडेला चाहते थे अपने कंट्री के लिए और ये हुआ. स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी हैं और जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी फटाफट कर लेते हैं. सो डेप्यूटी एक वर्ड आया है इसमें, इसका मतलब होता है सेकंड इन कमांड. तो जैसे कि आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर होता है और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड इन पावर होता है दैट इज डेप्यूटी. स्वॉन मतलब गिवन अंडर ओथ. तो जब शपथ ली जाती है तो
जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेते हैं, वैसे ही स्वोन तब कहता है स्वोन, आई वाज स्वोन इन। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी पोजीशन में जाते हैं तो दे से स्वोन इन, डिटरमाइंड टू स्टे इन द रोल स्पेसिफाइड। प्लेज्ड, प्लेज्ड का मतलब होता है कमिटेड बाय सोलेम प्रॉमिस, मतलब मैं प्लेज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। असेंबल्ड का मतलब होता है गैदरिंग टुगेदर, कुछ लोग, एक दो चार पाँच छः से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं किसी एक काम के लिए। जैसे कि जब आप जाते हैं किसी भाषण को सुनने तो वहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। कॉन्फर का मतलब होता है ग्रांट, मतलब किसी को देना। ग्लोरी होती है ऑनर। आउटलॉज, because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations. साउथ अफ्रीका उसको आउटलॉज कहते हैं, मतलब कि वो they don't find the South African countries and the people following any law. On our own soil मतलब अपनी कंट्री में ही. Possession, ownership. Dignity, the state or quality of being worthy of respect. Apartheid, a policy or system of segregation on grounds of race. Profound, very great or intense. Unintended का मतलब होता है not planned, मतलब बिना सोचे समझे कुछ कर देना. कॉमरेड्स होते हैं कोलीग या दोस्त आपके साथ में जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. रेजिलियंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी मुश्किल घड़ी से निकल के उभर के ऊपर आना, उसको रेजिलियंस कहते हैं. डिफाइज, रिफ्यूज टू ओबे, मतलब किसी की बात नहीं माननी, आई डिफाई. ट्रायम्फ का मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट. ग्रिमेस्ट मतलब बहुत ही थोड़ी सी आस जहाँ पे बची हो. ग्लिमर, शाइन फेंटली, यानी कि हल्की सी रोशनी कहीं से आती हो. पुश टू आवर लिमिट्स, यानी कि एक अंत तक हद कर दी, जिसको कहते हैं कि हद ही कर दी हमने. पुश टू आवर लिमिट्स. रीअश्योर, say or do something to remove the doubts. Obligations, a duty or a commitment. Civil, courteous and polite. Inclination, natural tendencies of behavior, यानी कि आप inclination मतलब आप कहीं पे inclined होते हैं. Light, half light, semi darkness. Secrecy, the action of keeping something secret. Rebellion, the action or process of resisting authority. Boyhood, the state और टाइम ऑफ बीइंग अ बॉय. तो ये आप देखेंगे बहुत सारे मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सब इकट्ठे एक जगह कर दिए हैं. आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. इसके अलावा आपके इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के, ये भी लिखे हुए हैं. वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. जैसे कि राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ लिया था. 10 मई को ऑटम मे डे क्यों कहते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए वी कैन से दैट मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन. एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच ही मेंशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है. व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ये भी हमने कर लिया है. व्हाट आइडियल्स डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. As the newly elected president of South Africa, Nelson Mandela wanted to liberate the country of all the unjust practices. He sets out ideals for a country which was free of poverty, discrimination and injustice. What do the military generals do? How was their attitude changed? ये भी हमने किया है. Military generals saluted Nelson Mandela and promised their support. Or their attitude has changed because earlier they were under the yoke of white supremacy. And during that rule, they would have arrested Mandela because that time he was treated as criminal. Now, with the abolition of apartheid and formation of democratic government, their attitude has changed. Why were two national anthems sung? ये थोड़ा important है, ध्यान रखना. The two national anthems were sung, one of the blacks, another of the whites, symbolizing equality and respect for the entire community. How does Mandela describe the system's government is considering the first decade and the final decade of the 20th century? तो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं आप. You can go ahead and read from my blog. What does courage mean to Mandela? To Mandela, courage does not mean the absence of fear, but the victory over it. A man who is courageous is the one who has overcome his fear to fight all odds. Which does he think is natural, to love or hate? वो कहते हैं नेचुरल क्या होता है, प्यार करना या हेट करना. Mandela thinks and believes that love comes more naturally to humans as opposed to hatred or hate. No one is born with hatred.
in his heart for another. What twin obligation does Mandela mention? According to Mandela, every person has twin obligations, one toward his family and the other towards his society or country. What did being free mean to Mandela? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा क्वेश्चन आंसर है, आप इसको पढ़ लीजिए. Does Mandela think the oppressor is free? हमने ये भी किया है. No. Why did such a large number of international leaders attended? There were large number of international leaders to celebrate the end of apartheid system and display support to South Africa. तो ये सारे जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं आई हैव डन इन माई ब्लॉग. यू कैन गो एंड विजिट दिस. लॉन्ग आंसर्स में भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ रहा हूँ. यू कैन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन विजिट द ब्लॉग एंड रीड इट योरसेल्फ. कुछ ग्रामर एक्सरसाइज थी कि आपको नाउन और वर्ब करना है. तो रेबेलियन का वर्ब है रेबल, कॉन्स्टिट्यूशन का कंस्टिट्यूट, फॉर्मेशन का फॉर्म, गवर्नमेंट का गवर्न, ऑब्लिगेशन का ऑब्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रिमिनेशन का डिस्क्रिमिनेट, डिप्राइवेशन का डिप्राइव, डेमोन्स्ट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेट, ऑपरेशन का ऑप्रेस और इमेजिनेशन का इमेजिन. आपके बुक में ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब यूज करना है. तो मार्टिन लूथर किंग्स कंट्रीब्यूशन टू अवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द असिस्टेंस ऑफ रोजा पार्क्स. ये मैंने लिखा हुआ है. A seamstress who refused to give up her seat on a bus of white passenger. To break these laws would mean subjugation and humiliation. और imprison का imprisonment, resistance resist का. ये सारे verbs आ गए हैं. यहाँ पे एक आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है मैच करने वाली, ये भी मैंने कर दी है. इसके आंसर अब देख लीजिए. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द एक्ट, इसका है हैड नॉट फॉरगॉटन, मैं भूला नहीं था. I was aware. When my comrades and I were pushed to our limits, felt that we could not endure the suffering any longer. मतलब एक हद हो गई थी, उसके आगे हम सह नहीं पा रहे थे. To reassure me and keep me going, help me continue to live in hope of very difficult situation. The basic and honorable freedoms of earning my keep, earning enough money to live on. यानी कि इतनी कमाई हो जाए कि मैं जिंदा रह सकूं. And thank you students. If you have लव दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट. मैं और चैप्टर्स के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, मिक्स समरी वगैरह सारे बनाने शुरू कर रहा हूँ. एमसीक्यू मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के बना दिए हैं, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, या इस वीडियो में ऊपर आपको लिंक आया होगा, आप उसको देख लीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you have liked it and it is going to help you in your exams. Thank you for watching. Have a lovely day.